हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 2 नवंबर 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश कोर क्लास 11 करेंगे। टाइम इज 60 मिनट्स, मार्क्स 40। इंस्ट्रक्शंस नंबर 1, दिस क्वेश्चन पेपर is divided into 4 sections A, B, C and D. Second, all the sections are compulsory. Third, attempt all the parts of a section together. Section A, reading skills, carry 10 marks. First one, read the following passage and answer the questions that follow by choosing correct options given. ये आपका पैसेज है। Three things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts flames. The third thing needed to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would not catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We often do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is a very useful as long as it is kept under control. First question, what is needed to make fire? Option A, oxygen, oxygen B, fuel, oxygen C, heat, D, all of the above. Right answer is D, all of the above. Means oxygen, fuel and heat are needed to make a fire. Second one, what is the temperature known as it at which something begin to burn? A, flash point, B, flash distance, C, heat, D, main point. Right answer is flash point. Third, choose the examples of fuel. A, wood and coal, B, gas, C, oxygen and petrol, D, all of the above. Right answer is D, all of the above. Now question 4, where does oxygen come from? A, from water, B, from CO2, C, from fire, D, from temperature. Right answer is option C, from air. ऑक्सीजन जो है वो एयर से जो है कम फ्रॉम है। 5-1, what happens when we blow on a smoldering paper? A, it bursts into flames, B, it bursts into pieces, C, it does not burst into flames, D, it does not burst into pieces. इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स। सेकंड है आपका read the following passage and make notes on it and give a suitable title. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। An honest man has nothing to fear. एक honest man को किसी चीज़ से डर नहीं लगता। He enjoys perfect peace of mind. वह अपने पूर्ण जो दिमाग की शांति है उसका आनंद लेता है। He enjoys the love एंड कॉन्फिडेंस ऑफ अदर्स। वह दूसरे के प्यार और विश्वास को एंजॉय करता है। ही मे बी पुअर, वह पुअर हो सकता है, येट एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम, फिर भी हर कोई उसका आदर करता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ए डिसऑनेस्ट पर्सन इज हेटेड एंड सस्पेक्टेड बाय एवरीवन। एक जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है उसको जो है हेट किया जाता है और सस्पेक्ट किया जाता है हर एक के द्वारा। हेटेड का मतलब नफरत करना और सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदेह की दृष्टि से देखना। ही मे सीम टू फ्लरिश फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वो फ्लरिश कर रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है। बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो हिज डिसऑनेस्टी इज एक्सपोज्ड, उसकी बेईमानी जो है वो सबके सामने आ जाती है, उजागर हो जाती है। एंड ही सफ़र्स, और वह इसका जो है नुकसान उठाता है। A dishonest person
always lives in constant fear of being detected and then sent to jail. एक जो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है वो हमेशा निरंतर भय में रहता है कि उसे जो है डिटेक्ट कर लिया जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर लूजेस हिज कस्टमर्स। एक जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो अपने कस्टमर्स को खो देता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एंड फॉल्स ऑन इविल डेज, और उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। डिसऑनेस्टी कैन नॉट रिमेन हिडन फॉर ए लॉन्ग टाइम। बेईमानी जो है ज़्यादा समय तक छुपी नहीं रह सकती। दस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस एंड ग्लोरी इन लाइफ, इस तरह से जीवन में मतलब जो है सफलता और शान को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस ऑनेस्टी। हमें ऑनेस्टी को जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, ईमानदारी को। वी ऑल नो द स्टोरी ऑफ द ऑनेस्ट वुड कटर। हम सब ईमानदार लकड़हारे की कहानी को जानते हैं। गॉड मर्कुरी वॉज सो प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी। बुध देवता जो हैं, मर्कुरी जो है गॉड, वो उसकी ईमानदारी से इतने प्रसन्न हुए दैट ही गेव हिम एन एक्स ऑफ गोल्ड एज ए प्राइज फॉर हिज ऑनेस्टी, कि उन्होंने जो क्या किया उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी इनाम के रूप में उसकी ईमानदारी के लिए। इन द सेम वे, इसी तरह से आवर ऑनेस्टी इज बाउंड टू बी रिवार्डेड। हमारी ईमानदारी को जो है पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ऑल तो द रिवार्ड में कम ए बिट लेट, और हो सकता है कि वो रिवार्ड कुछ देर से आए। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड वर ऑनेस्ट इन देयर डीलिंग्स। संसार के सभी महान व्यक्ति अपने डीलिंग्स में ऑनेस्ट थे। दे रोज टू एमिनेंस बाय देयर ऑनेस्टी। वे अपनी जो एमिनेंस है, यानी ऊंचाई पर जो है वो अपनी ईमानदारी से पहुँचे। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ऑनेस्टी जो है पे करती है। वेयर एज द फ्रूट्स ऑफ डिसऑनेस्टी आर बीटर। जबकि जो डिसऑनेस्टी के जो फ्रूट्स होते हैं वो कड़वे होते हैं। एंड नॉट लॉन्ग लास्टिंग, और वो लंबे समय तक नहीं चलते। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस पैसेज को समझा दिया है। अब आपको इसकी नोट मेकिंग करनी है। पहले आप बनाएंगे मेन हेडिंग्स, फिर आप बनाएंगे सब हेडिंग्स और एब्रीविएशंस का यूज करेंगे, और पैसेज को जो है टाइटल देंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए। अब चलते हैं सेक्शन बी पर। थर्ड वन है आपका क्वेश्चन, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। ऑन 15 जनवरी, 15 जनवरी को, दिस ईयर, आज के दिन, द एनुअल स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में वार्षिक खेल दिवस मनाया गया। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की जो है रिपोर्ट जो है वो तैयार करें। रिपोर्ट राइटिंग ऑन एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। रिपोर्टेड बाय, यहाँ मैंने XYZ लिखा है, यहाँ हम अपना नाम लिख सकते हैं। ऑन 15 जनवरी दिस ईयर आवर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट्स डे विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ऑन दिस स्पेशल डे our district education officer was the chief guest. The program started with the arrival of chief guest. He inaugurated our sports program by lighting the lamp. Various sports programs were organized in our school playground. Along with this, a stage was also made in the ground in which all the senior most teachers, principal, and our chief guest were sitting. Many sports like cricket, football, kho-kho, volleyball were played. After all the games were over, there was a prize distribution ceremony in which all the members of the match winning team were given prizes at the hands of our chief guest. And in the end, our chief guest also gave a motivational speech in which he advised everyone to participate in the field of sports and also told many benefits of doing sports activities. इसमें आपके लिए चॉइस भी है, ऑप्शन भी है, और में लास्ट ईयर देयर वर वाइड स्प्रेड फ्लड्स इन योर स्टेट। पिछले साल आपके राज्य में वाइड स्प्रेड फ्लड्स थे, यानी बहुत बाढ़ आ गई थी। मैनी पीपल वर अफेक्टेड, बहुत से लोग प्रभावित हुए।
एज ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के रूप में, यू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ फ्लड, आपने जो फ्लड के जो विक्टिम्स थे यानी बाढ़ के जो शिकार हुए थे उनकी हेल्प की। डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, अपने एक्सपीरियंस को आप 100 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, आपको जो अपना एक्सपीरियंस बताना है कि कैसे आपने जो फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करी, क्या क्या आपको दिक्कतें आई, कैसा जो वहाँ पर सीन था, ये सारा डिस्क्राइब करेंगे आप। तो ये आप खुद करें। सेक्शन सी है ग्रामर, 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन है डैश हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ऑप्शन है ए कैन, बी माइट, सी में, डी विल। तो जब भी हम भगवान से कोई भी जो है विश करते हैं या प्रेयर करते हैं तो मॉडल मे का यूज होता है। तो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन है वी डैश रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन ए शुड, बी वुड, सी कैन, डी माइट। तो ये कर्तव्य है हमारा और कर्तव्य के लिए हम शुड लगाते हैं, ड्यूटी के लिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड है आपका आई डैश द ट्रीज व्हेन आई वॉज ए बॉय, ए कैन, बी कुड, सी शैल, डी में। मैं पेड़ पर चढ़ सकता था जब मैं एक लड़का था। तो पास्ट की एबिलिटी है, भूतकाल की योग्यता है, तो मॉडल कुड का यूज होगा। आई कुड क्लाइंब द ट्री व्हेन आई वॉज ए बॉय, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। कंबाइन दीज सेंटेंसेस एंड चूज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है रमित हैज़ नो मनी, इट इज ए फैक्ट। तो इट इज ए फैक्ट दैट रमित हैज़ नो मनी, जब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस बनेगा इट इज ए फैक्ट दैट रमित हैज़ नो मनी, यह तथ्य है कि रमित के पास पैसा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिफ्थ वन है ही इज इनोसेंट आई एम श्योर। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे आई एम श्योर से। आई एम श्योर दैट ही इज इनोसेंट, मुझे विश्वास है कि वो इनोसेंट है, निर्दोष है। तो आई एम श्योर दैट ही इज इनोसेंट, वो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सेक्शन डी लिटरेचर है आपका, कैरिंग 20 मार्क्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज ऑब्लिक स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। तो ये आपका जो है सिल्क रोड में से पैसेज है, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट है नेम द लेसन एंड द ऑथर। तो स्टूडेंट्स ये लेसन है आपका सिल्क रोड और ऑथर है निक मिडल्टन। तो ऑप्शन ए सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन वो राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हुज एक्सपीरियंस वाज इन ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, किसका एक्सपीरियंस जो था वो स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में था, वो ऑथर का था, लेखक का था। ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है हु वॉज इकाई कावागुची। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए जैपनीज मॉन्क, ए जैपनीज मॉन्क, ऑप्शन डी इज राइट। अब है आपका स्टैंजा पोएम का। पोएम है आपकी फादर टू सन। I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from now. He was when small. First one is from which poem these lines have been taken. As I have already told you that the name of this poem is Father to Son. Option D is correct. Second one, who have lived together in this poem. इस पोएम में इकट्ठे कौन रहे हैं, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, ऑप्शन सी राइट है। थर्ड, हु इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू रिलेशनशिप, कौन जो है न्यू रिलेशनशिप को बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है, तो ये है फादर, पिता, ऑप्शन सी द फादर जो है वो राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कहता है डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस एट दार्चेन, जिसे हम करेंगे। एक क्वेश्चन और है इसमें, एक्सप्लेन निक मिडल्टन जर्नी फ्रॉम रावू टू दार्चेन ऑन सिल्क रोड।
तो 2 क्वेश्चन हैं ये। एक्सप्लेन निक मिडल्टन जर्नी फ्रॉम रावू टू दार्चेन ऑन सिल्क रोड और डिस्क्राइब द राइटर्स एक्सपीरियंस एट दार्चेन। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। मैं आपको राइटर्स एक्सपीरियंस एट दार्चेन जो है इसे क्लियर कर देता हूँ। दार्चेन इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 4,760 meters above sea level. They arrived there at 10:30 p.m. The cold of the mountains, the dust and height of the atmospheric pressure on the path deteriorated the author's cold condition. His nose was blocked. He was struggling for oxygen all night but could not. Whenever he tried or was close to sleeping problem in the chest awakened the writer. He could not find the exact cause of the trouble, but sleep would not come. The next day, Satan took him to the local medical college. A Tibetan doctor checked him closely and gave the author a 5-day course of Tibetan medicine. The first dose of these medicines gave the writer a lot of relief. He could sleep comfortably that night. तो ये तो था आपका राइटर का एक्सपीरियंस दार्चेन में। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, वाई वॉज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विथ दार्चेन। 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। लेखक जो है वो दार्चेन से जो है डिसअपॉइंटेड क्यों था। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विथ दार्चेन। जो लेखक था वो दार्चेन से जो है डिसअपॉइंटेड था। द हाई एल्टीट्यूड वॉज गिविंग हिम हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हाई एल्टीट्यूड था वो उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स दे रहा था। ही हैड ए बैड कोल्ड, उसे पूरी तरह से ठंड लगी हुई थी। एंड वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट, और वो रात को सो नहीं सकता था। सिंस ही वॉज वन ऑफ द अर्ली अराइवल्स, क्योंकि वो जल्दी आगमन उसने किया था। देयर वरंट एनी पिलग्रिम्स कमिंग टू द प्लेस, वहाँ बहुत सारे कोई पिलग्रिम्स नहीं थे। द प्लेस वॉज डस्टी, जो जगह थी वो डस्टी थी, धूल भरी थी। पार्शियली डेरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज। इस वजह से जो ऑथर है वो दार्चेन से डिसअपॉइंटेड था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर इन अबाउट 30 वर्ड्स व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, और व्हाट डज द पोएम फादर टू सन से अबाउट द यंग सन एंड हिज ओन वर्ल्ड। जो पोएम है फादर टू सन क्या कहती है यंग सन और उसके ओन वर्ल्ड के बारे में। तो 2 क्वेश्चंस हैं, हम इसमें से फर्स्ट वाला करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। दिस पोएम इज रिटन विद ए सीमिंगली प्राइवेट थीम, but it's a great universal appeal. The poem at the deep level is related to the matter of generation gap. It states that when a child grows, he comes into conflict with the ideology of his parents. Parents give all their care and affection to a child. When the child grows up, then he creates his own world. It is a world of his own thoughts. It is a world of his understanding. The day comes when there is a complete loss of understanding between the two. At last, the son is not ready to understand his father's feelings. The child starts sharing his feelings and emotions with others. The father is ready to sacrifice everything for the return of his son's love. He is ready to forgive all his mistakes and incompleteness if he only returns. Therefore, father's pain in this poem is usually every father's suffering. तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई फादर का जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, और क्या ये यूनिवर्सल है, इस पर भी हम सोच सकते हैं। तो बताया है कि फादर जो है अपने बेटे के साथ जो रिलेशनशिप चाइल्डहुड में शेयर करता था वो अब नहीं है, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और फादर ये प्रयास करता है कि उन दोनों के बीच फिर से वही रिलेशनशिप जो है स्थापित हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 9 है आंसर इन अबाउट 100 वर्ड्स. Narrate the tale of Melon City in your own words or explain how the tale of Melon City highlight humor. तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है narrate the tale of Melon City in your own words, ये हम कर लेते हैं. और फिर क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपका आंसर इन अबाउट 30 वर्ड्स. हाउ वॉज ए मेलन क्राउंड एज द किंग ऑफ द कंट्री. ये 2 क्वेश्चन हमारे रिमेनिंग है, इनको हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 नरेट द स्टोरी ऑफ मेलन सिटी इन योर ओन वर्ड्स. तो अब जो है इस क्वेश्चंस का जो आंसर है ये हम स्टार्ट करते हैं. वंस द किंग ordered the construction of an ark on the main road of the city. The workers made it. One day, the king passed that way. His crown struck against the low-built ark and fell down. The king was angry at the insult of his crown. Therefore, he ordered that the chief of the workers will be hanged. But the chief told the king that it was the mistake of the workers. Workers also blamed the mason. He said that this was the architect's fault. The architect saved his life by blaming the king because he made some changes in the plan. The king got an advice on this matter. The wise man said that the ark should be hanged. But at the right time, a counselor advised the king that the ark should not be hanged. The king decided that someone should be hanged. So the hoax was thrown. Anyone except the king could not reach that height. So the king was hanged. According to the custom, anyone who passes through the main road of the city will choose the king. Such a person was a fool. He chose Melon as the king of that city. So people made Melon their king. Now question number 10. How was a melon crowned as the king of the country? कि कैसे एक मेलन को जो है देश के राजा के रूप में क्राउंड किया गया. तो ये आपका आंसर है. द मिनिस्टर्स सेंट आउट मैसेंजर्स टू डिक्लेयर दैट द नेक्स्ट मैन टू पास द सिटी गेट वुड चूज द रूलर ऑफ देयर स्टेट. एन इडियट हैपेंड टू पास द गेट. व्हेन आस्क्ड टू डिसाइड हु वाज टू बी द किंग ही रिप्लाइड ए मेलन. This was his standard answer to all questions. The ministers declared that a melon would be their new ruler. तो मंत्रियों ने जो है संदेश वाहक भेज दिए कि जो भी व्यक्ति अगले दिन नगर द्वार में से सबसे पहले गुजरेगा वही नए राजा का चुनाव करेगा. अब समय की बात है कि भाई द्वार से सबसे पहले एक पागल गुजरा. जब उनसे पूछा गया कि अगला राजा कौन है तो उसने उत्तर दिया खरबूजा. प्रत्येक सवाल के जवाब में उसका हमेशा यही उत्तर होता था. इसलिए मंत्रियों ने घोषणा कर दी कि उनका अगला शासक जो है एक खरबूजा होगा. तो इस तरह से जो है मेलन को जो है कंट्री के जो है किंग के रूप में क्राउंड किया गया. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका क्लास 11 का जो पेपर हुआ है इंग्लिश का वो यहीं पर समाप्त होता है. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.